मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस द लास्ट एडम अनडिड ऑल द थिंग्स फर्स्ट एडम डिड. यीशु जो आखिरी आदम है, उसने वो सब कुछ वापस उल्टा कर दिया जो पहले आदम ने किया था. Amen. Hallelujah. Glory. प्रभु ने क्या कहा था? What did the Lord say? आदम को क्या बोला था कि पेड़ का फल मत खाना. Do not eat the fruit of the tree. और उसने खा दिया. And he ate. Are you ready? तैयार हो? Do you know what is the tree of life? पता है जीवन का वृक्ष क्या है? एक फल पेड़ पे लटका था जिसको खा के आदम ने मृत्यु को पा लिया. There was a fruit hanging from a tree that Adam ate and received death. मगर यीशु मसीह एक फल बनकर पेड़ पर लटक गया. क्रॉस इज द ट्री ऑफ लाइफ. But Jesus became a fruit and hung on a tree. वो क्रूस जीवन का वृक्ष है. Cross is the tree of life. क्रूस जीवन का वृक्ष है. Where Jesus hung as the fruit. जहां पर यीशु एक फल की तरह टंग गया. और उसने क्या कहा? What did he say? जो कोई मेरे मांस को खाए और मेरे लहू को पिए वो अनंत जीवन उसका है. Whoever will eat of my flesh and drink of my blood, to him belongs the eternal life. Hallelujah. So जो क्रूस को आप देख रहे हो वो जीवन का पेड़ है. The cross you're looking at is the tree of life. Amen. Hallelujah. 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. Just give me a second. There's a lot of echo, so I have put in ears. Hallelujah. Okay, 1 Peter 2:24. पहला पत्रस 2:24. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. हाँ? On the tree. उस पेड़ पर. यीशु मसीह उस पेड़ पर चला गया. Jesus stood on that tree. That we having died to sins जिससे हम पापों के लिए मरकर might live for righteousness. धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. By whose stripes जिसके कोड़े खाने you were healed. तुम चंगे हुए. Amen. Hallelujah. So, John 6:51. Let me read it. I am the living bread which came down from heaven. यूहन्ना 6 उसका 51. यीशु ने कहा मैं वो जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है. If anyone eats of this bread, यदि कोई इस रोटी को खाए, he will live forever. तो वो सर्वदा जीवित रहेगा. And the bread that I shall give is my flesh, और जो रोटी मैं इस जगत को देता हूँ वो which I shall give for the life of the world. वो मेरा मांस है जो मैं इस जगत के जीवन के लिए देता हूँ. Amen. John 6:53. Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. यूहन्ना 6:53. यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life. जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है. And I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा. For my flesh is food indeed. क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है. जब ईव ने उस फल को देखा तो बोला, this is a good thing for it's a good thing for food. It's a good thing to eat. When Eve saw that fruit, उसने कहा ये सच में खाने के लिए अच्छा है. Amen. My flesh is food indeed, my blood is drink indeed. मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. जो मेरा मांस खा मेरे लहू में से पिए, मैं उसमें बना रहता हूँ और वो मुझ में बना रहता है. Amen. What is Jesus saying? It's a spiritual significance. यीशु क्या कह रहे हैं? ये एक आत्मिक महत्व है इसमें. He is not making us carnivores कि हम लोग मांस खाने लग जाएं किसी का.
No, it's a prophetic picture. ये एक भविष्यवाणी की तस्वीर है। जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते, सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया। एंड व्हेन वी पार्टेक ऑफ हिम वी हैव इटर्नल लाइफ। Just as Adam and Eve ate that fruit and death entered, then Jesus became the fruit of life for us. So when we eat him, we have life, eternal life. सो प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो। Whenever you are eating from the Holy Communion, you are eating from that fruit of the fruit of the life. Amen. इसीलिए आज जब आप कम्युनियन लोगे, एक अलग तरीके से लोगे। So today when you will take communion, it will be different. पाप खाने की वजह से आया, Sin came because of eating. और आज अनंत जीवन भी खाने की वजह से आया। And today eternal life has also come because of eating. अगर उस फल को खा के पाप का स्वभाव आ गया, तो इस फल को खा के धार्मिकता का स्वभाव आता है। If by eating that fruit the nature of sin entered, by eating this fruit the nature of righteousness enters. Amen. Hallelujah. Oh, praise God. कुछ सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं ये सीरीज हम लोग महीनों ले जा सकते हैं। There is, I usually don't share this because कलीसिया तैयार नहीं है इस मैसेज के लिए, but I feel you guys are mature. है ना? और मैंने आपको क्या बताया, समय आ गया है जब हम परमेश्वर के राज्य की आदि शिक्षाओं से ऊपर उठकर अब परफेक्शन की ओर जाने लग जाए। And I told you it's time for us to leave the fundamental, the basic teachings of the Word of God and move into maturity. वरना हम यही बोलते हैं, पाप मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत। बहुत ठीक है, वो बच्चों के लिए अच्छा है। Otherwise you'll keep saying don't sin, don't sin, don't sin. That's okay for kids. जिस दिन आप जान जाओगे मुझ में एक नया स्वभाव है, पाप आपके ऊपर प्रभुता अब नहीं कर सकता, बाइबल कहती है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। The day you know you have a new nature, the nature of righteousness, you will know you are not under sin. Sin will not have dominion over you. Amen. So, आदम कैसे लेके आया पाप? How did Adam bring sin? By eating खाने के द्वारा a fruit एक फल को, from a tree. जो कि एक पेड़ से था। Jesus brought life by becoming the fruit of life, hanging on that tree. यीशु जीवन, अनंत जीवन लेके आया एक फल बनकर जो उस पेड़ पर टांगा गया था। हाँ, जो लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर था तो क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो आया ही था काट में लटकने के लिए, कि वो जीवन के वृक्ष से हम लोग खा सके उस फल को। Today when people say when he was God, why didn't he save himself from that cross? He came so he would hang on it like a fruit so we can eat from him. Amen. Hallelujah. अभी देखते हैं Genesis 2:21, उत्पत्ति 2:21। And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया And he slept. और वो सो गया। And he took one of his ribs and closed up his flesh in its place. तो उसने उसकी एक पहली पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हिब्रू स्क्रिप्चर में रिब नहीं है, हिब्रू स्क्रिप्चर में साइड है। इब्रानी भाषा में इट्स साइड। ओके, देन द रिब, मतलब वही शब्द है, वो रिब के लिए भी यूज होता है, वो साइड के लिए भी यूज होता है। देन द रिब विच द लॉर्ड गॉड हैड टेकन फ्रॉम मैन ही मेड इनटू अ वुमन। तो वो जो पसली यहोवा परमेश्वर ने निकाली थी उससे उसने एक स्त्री को बनाया। एक आमेन। सो परमेश्वर ने क्या किया? व्हाट डिड गॉड डू? ईव को बनाया। ही मेड ईव। ईव कहाँ थी? वेयर वाज ईव? आदम के अंदर थी। शी वाज इन एडम। आदम ने ईव को जन्म दिया, पता है आपको? एडम बर्थड ईव, डिड यू नो? फ्रॉम द साइड, फ्रॉम हिज साइड, अपने बगल से। साइड से आदम ने ईव को जन्म दिया, अपनी पसली में से। Adam gave birth to Eve. Are you ready for the revelation? तैयार हो प्रकाशन के लिए? God caused deep sleep to fall upon Adam. परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरस क्या कर रहा है? सो रहा है। When Lazarus died, Jesus said he is sleeping. Okay. Ready? तैयार हो? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, When Jesus died on the cross, when the last Adam went into deep sleep, जब आखिरी आदम भारी नींद में गया, और एक
जो वहां सोल्जर था, सैनिक था, उसने उसके साइड में भाला मारा, And there was a soldier who poked into his side. and his side opened उसकी and blood and water came. और लहू और पानी निकला. आप जानते हैं जब किसी का नया जन्म होता है, जब बच्चा नया जन्म होता है, तो blood and water comes out. When a newborn is born, blood and water comes out. And from the side of Lord Jesus Christ, the new creation was born. The church of the living God was born. And और प्रभु यीशु मसीह की पसली से वो नई कलीसिया का जन्म हुआ, नई सृष्टि का जन्म हुआ. Amen. Amen. उसकी साइड से, जैसे आदम की साइड से उसकी ब्राइड आई, उसकी दुल्हन आई, यीशु मसीह की साइड से भी उसकी दुल्हन आई. Just as from Adam's side his bride was born, from Jesus' side his bride, his church was born. Hallelujah. Praise God. और उस दिन हमारा जीनोलॉजी बदल गई. अब हम पहले आदम में नहीं, अब हम मसीह यीशु में हैं. And that day our genealogy was changed. We are not in the first Adam, we are in Jesus. Amen. प्रॉब्लम ये है, आज भी कुछ मसीह अपने आप को पुराने आदम की तरफ देखते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे The हैं. problem is many believers still look at themselves as if they are from the first Adam and they are trying to fix it. Hallelujah. John 19:33 to 34. यूहन्ना 19:33-34. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, they did not break his legs. तो उसकी टांगें न तोड़ी. But one of the soldiers pierced his side परंतु सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा. with a spear, एक बर्छे से, भाले से. and immediately blood and water came out. और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला. हर एक चीज जो पवित्र आत्मा ने वचन में लिखी है, उसका एक आत्मिक सिग्निफिकेंस है. इट्स अ प्रोफेटिक पिक्चर. Every detail that the Holy Spirit has captured in the word has a prophetic image. Blood and water coming out is a sign of new birth. वो लहू और पानी जो दर्शा गया वो एक नए जन्म का चिन्ह है. उस समय At that time कलीसिया का जन्म हुआ. the church was born. उस समय नए क्रिएशन का जन्म हुआ. At that time the new creation was born. Amen. Amen. The church was born. कलीसिया ये का जो जन्म. आखिरी आदम है, This last Adam, परमेश्वर ने इसके अंदर जो हेवनली आदम है, इसके साइड से परमेश्वर ने हेवनली ईव को निकाला. from the side of the heavenly Adam, God took out a heavenly Eve. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Ooh. Adam was in physical union with his wife. आदम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक एकता में था. क्योंकि वो शारीरिक था, Because he was physical, तो वो अपने पत्नी के साथ शारीरिक तरीके से एक हो गया. he became one with his wife physically. क्योंकि आखिरी आदम आत्मिक है, Because the last Adam is a वो spirit, अपनी दुल्हन के साथ आत्मा में एक हो गया. he became one with his bride in the spirit. Genesis 2:24 says that for this reason a man should leave his father and mother and be joined to his wife and they shall be one flesh. उत्पत्ति 2:24 वचन कहता है, इस कारण से एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा. Amen. But let's read 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 देखते हैं. 1 Corinthians 6:17. यहाँ पे क्या लिखा है? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Amen. Hallelujah. आप सोच सकते हो, आपके अंदर अब एक आत्मा नहीं, दो आत्माएं हैं जो एक हो चुकी है. आपकी नई आत्मा जो परमेश्वर ने दी और परमेश्वर का आत्मा अब एक है आपके अंदर. Can you imagine there's not one spirit in you now, there's two spirits, your spirit and the spirit of God that has become one with your spirit now. अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ होगा, Still many people are thinking what will happen क्योंकि to नहीं us. जानते मसीह ने हमारे लिए क्रूस में क्या कर दिया. Because they do not know what Jesus has done for them on मैं the आपको cross. बता रहा हूं, पौलुस जो स्कॉलर था, I'm telling you, Paul who was पुराना a नियम scholar, पूरा जानता था. he who knew the Old Testament entirely. गमेलियल जो उस टाइम का बेस्ट टीचर था, उसके अंडर पढ़ा हुआ था. Gamaliel was the best teacher of the time and Paul studied under him. फैरिसियों का फैरिसी He था. was a Pharisee to Pharisees. वो कहता है मैंने वो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान जो है गोबर समझ लिया अपने He सामने. says, I have considered all my knowledge as dung. वो कहता है अब मैं एक ही चीज जानता हूं, मसीह, क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड इज माय मैसेज. Now I only know one thing, मसीह और जो क्रूस पर लटकाया गया वो वही मेरा संदेश है.
आमेन। मैं आपको बता रहा हूं आज क्यों आज इतने सारे मसीह बंधनों में। Why are so many believers in bondages today? Because they don't understand the mystery of the cross. क्योंकि वो क्रूस के रहस्य को नहीं समझते। बाइबल कहती है कि ग्रीक्स के लिए, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो बुद्धिमान है उनके लिए बेवकूफी का मैसेज है क्रॉस का। For the people who think they are wise, the message of the cross is Greek foolishness. is a prophetic symbol of intellectuals in this world. Oh, I'm very intellectual. जो दुनियावी रूप से ज्ञानी समझते हैं अपने आप को। कहते हैं what a foolish message कि एक बंदा एक पेड़ पे लटका दिया तुमने उससे और तुम कह रहे हो उसकी वजह से हम चेंज हो गए। What a foolish message that you hung one guy on the tree and everybody got changed because of that. So जो ग्रीक्स हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए क्रूस की कथा क्या है? बेवकूफी है। To those who think they are knowledgeable, the message of the cross is foolishness. And to the Pharisees, यानी जो बहुत ज्यादा धर्मी है, And to the Pharisees, वो उनके फरीसियों के लिए लिए क्रूस की जो कथा है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है। the cross is a stumbling block. उनके लिए एक ठोकर खाने का। यानी वो कहते हैं अच्छा they say मतलब तुम क्या कह रहे हो, अब हमने यीशु पे विश्वास कर दिया तो मतलब अब हमें क्या कुछ नहीं करना क्या? So you're saying we believe in Jesus, we don't have to do anything now. अरे सुन तो लो पहले पूरा। First hear. हाँ, don't put the cart before the horse. घोड़े को पीछे मत करो, गाड़ी को आगे मत रखो। स्वभाव भी बदलेगा, Your nature will also change. कर्म भी बदलेंगे, Your works will also change. सब कुछ बदलेगा। Everything will change. उससे पहले Before that, स्वभाव बदला परमेश्वर ने हमारा। before that, God changed our very nature. कई मसीहों को आज लगता है कि सुसमाचार क्या है, हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। Many people think the gospel is we were sinners, God forgave us, and now we are going to heaven. No forgiven sinner can go to heaven. कोई भी क्षमा पाया हुआ पापी स्वर्ग नहीं जा सकता।